خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ پنجاب کا بجٹ 13 نہیں 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پنشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ابتدائی منظوری دے دی ہے۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 1100 ارب سے زائد رکھا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کی طرز پر تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی ابتدائی منظوری مل گئی۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کر لیا۔ محکمہ خزانہ سمری حتمی منظوری کے لیے صوبائی کابینہ کو پیش کرے گا۔ ترقیاتی بجٹ کا حجم 1100 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز ہے۔ سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 2750 ترقیاتی اسکیمیں شامل کی گئیں۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1076 ارب لوکل فنڈنگ ہوگی۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 124 ارب 30 کروڑ کی غیر ملکی فنڈنگ ہوگی۔ بجٹ میں 1412 جاری اسکیموں کے لیے 536 ارب روپے رکھے گئے۔ آئندہ مالی سال میں 1353 نئی ترقیاتی اسکیمیں شامل کی گئیں۔ بجٹ میں نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 457 ارب جبکہ 32 اولڈ ترقیاتی پروگرام کے لیے 207 ارب روپے کا بجٹ تجویز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ لوکل روڈ پروگرام بلاک کے لیے 100 ارب رکھنے کی تجویز ہے۔ پنجاب حکومت نے الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے 3 کروڑ ابتدائی طور پر رکھے گئے ہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کی سولر منتقلی کے لیے 1 ارب رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکولز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے 75 کروڑ، سرکاری کالجز میں سولر سسٹم کے لیے 3 ارب، سیشن عدالتوں، ہائی کورٹ بینچز کی سولر سسٹم پر منتقلی کے لیے 3 ارب 4 کروڑ، گورنر ہاؤس کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے 20 کروڑ، سولر بیسڈ ہائیڈرو پمپس پنجاب کے لیے 40 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ سیف سٹیز اتھارٹیز کی سولر پر منتقلی کے لیے 33 کروڑ 94 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے لیے 4 ارب 34 کروڑ 71 لاکھ۔ وزیر اعلیٰ اسکولز میل پروگرام 8 اضلاع کے لیے 9 ارب روپے۔ وزیر اعلیٰ ٹریکٹر پروگرام کے لیے 10 ارب جبکہ لاہور میں زراعت ہاؤس کی تعمیر و مرمت کے لیے 75 کروڑ رکھنے کی تجویز ہے۔ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کے لیے 5.5 ارب، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہاؤس پنجاب کے لیے 50 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس کے لیے 89 ارب روپے، 99 ارب روپے اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے 75 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کابینہ قائمہ کمیٹی نے سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی ہیں۔ 10 مرلہ اور اس سے زائد کے گھروں پر مزید 2% ٹیکس کی سفارش مسترد کر دی گئی جبکہ موٹر وہیکل ٹیکس میں 2% اضافے کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کی تیاری۔ پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 10 مرلہ اور اس سے زائد کے گھروں پر مزید 2% ٹیکس کی سفارش مسترد کر دی گئی۔ موٹر وہیکل ٹیکس میں 2% اضافے کی تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نئے ٹیکس لگانے کی تجاویز مسترد کر دی۔ محکمہ ایکسائز، زراعت، بلدیات اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے بعض نئے ٹیکس عائد کرنے کی سفارشات کی گئی تھیں۔ پنجاب کابینہ قائمہ کمیٹی نے سیلز ٹیکس پازیٹیو لسٹ کو نیگیٹو لسٹ میں پروسیجرل تبدیل کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب فائنانس بل میں پروسیجرل تبدیلی شامل کی جائے گی۔ ریسٹورنٹ، میرج ہال، بیوٹی پارلر پر کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر ٹیکس بڑھانے کی سفارش کر دی گئی۔ فیشن ڈیزائنر اور دیگر جگہوں پر ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 8% کرنے کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے استعمال پر ٹیکس شرح بڑھانے کی سفارش مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں۔ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اسے ٹیکس نیٹ میں شامل کریں۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال 2025 تا 2026 کے بجٹ میں محکمہ صنعت و تجارت کے لیے 35 ارب روپے رکھنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ تجویز کردہ رقم مختلف جاری اور نئی اسکیموں پر خرچ کی جائے گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کے قیام کے لیے 70 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ محکمہ صنعت و تجارت نے آئندہ مالی سال 2025 تا 2026 کے لیے 35 ارب روپے رکھنے کی تجویز پیش کی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز کے قیام کے لیے
70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल मुग़य्यर मुल्की सरमायाकारों के लिए क्लब कायम करने के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज दी गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में टेक्सटाइल के साथ साथ फार्मास्यूटिकल जोन बनाने की तजवीज भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट 2 के कयाम की तजवीज भी बजट में पेश की गई है। स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों पर 2 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज दी गई है। पंजाब के 380,000 सरकारी स्कूलों की सुनी गई है। तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब मुख्तस करने का फैसला हुआ। बजट से सरकारी स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया जाएगा। 50,000 नए क्लासरूम्स और फर्नीचर की कमी को पूरा किया जाएगा, जबकि बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों की सुनी गई। महकमे तालीम ने तरक्याती बजट 110 अरब मुख्तस कर दिया। तरक्याती बजट से पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में मिसिंग फैसिलिटीज को पूरा किया जाएगा। सरकारी स्कूलों की तलबा को भी स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। स्कूलों में 50,000 नए कमरे बनाए जाएंगे। 72 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया जाएगा। स्कूलों में क्लासरूम्स और फर्नीचर की कमी को पूरा किया जाएगा। स्कूलों की 4 दीवारी समेत दीगर सहूलियात को पूरा किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स की मंजूरी से सहूलियात को पूरा किया जाएगा। स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात 31 दिसंबर 2025 तक हर सूरत पूरी की जाएंगी। लेस्को सार्फिन को महंगी बिजली का एक और झटका। विफाक ने बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के बिलों में वसूल की जाएगी। CPPA ने ₹1.26 यूनिट इजाफा मांगा था। शहरियों पर एक और बोझ। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹93 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹1.26 फी यूनिट के हिसाब से इजाफा मांगा था, जिस पर नेपरा ने गुज़िश्ता माह समाअत की थी। समाअत के बाद ₹93 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है, जो सारिफिन से रवां माह के बिलों में वसूल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि माह अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के बिलों में वसूल की जाएगी। अनासन गर्मी के साथ साथ लेस्को का शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा है। बिजली की तलब 3,440 मेगावाट और फराहमी 3,350 मेगावाट है। लेस्को को 90 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। 140 मेगावाट तक बिजली की लोड मैनेजमेंट शुरू हो गई। हीट वेव की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स भी जलने लगे हैं। गर्मी की शिद्दत से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब बढ़ने लगी। लेस्को को 90 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को ने 140 मेगावाट तक बिजली की लोड मैनेजमेंट शुरू कर रखी है। कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 3,440 मेगावाट तक पहुंच गई। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को बिजली की फराहमी 3,350 मेगावाट है। लेस्को ने लैंड लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग का शेड्यूल बना रखा है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नदीम मलिक के मुताबिक कंपनी को शॉर्टफॉल का सामना नहीं है। दूसरी जानिब हीट वेव की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स भी जलने लगे हैं, जिससे सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करें मौसम की, तो बागों के शहर में सूरज सवानेसे पर आ गया है। आग बरसाती किरणें झुलसाने वाली गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए हैं। चरिंद परिंद हलकान है, जबकि शहरी गर्मी से निढाल हो गए। दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया है और शहरी घरों में महसूर हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। शहरी बारिश को भूल जाएं। बागों के शहर में सूरज सवानेजे पर आ गया। झुलसाने वाली गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के बाइस मौसम में शिद्दत पैदा हो रही है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत भी बढ़ी है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज के मुताबिक इस साल गर्मी का 18 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। कल देखें या परसों देखें तो इट वाज एक्सट्रीम वेदर के पिछले 18 साल का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है। इसमें 18 साल पिछले 18 साल बाद इस दफा इतना मौसम गर्म हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि अभी हीट वेव इसी तरह कंटिन्यू रहेगा और PDMA ने इसके ऊपर वार्निंग भी इशू की हुई है। तो ये एक्सट्रीम वेदर अभी कुछ दिन हमें फेस करना पड़ेगा। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। माहिरीन का कहना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। घरों से बाहर निकलने की सूरत में सर ढांप लें।
मेडिकल कॉलेजेस के तलबा छुट्टियों से महरूम हो गए। MBBS और BDS के दाखिलों में ताख़ीर का खमियाजा तलबा भुगतने पर मजबूर हैं। तालीमी साल का आगाज़ ताख़ीर से होने पर तलबा को गर्मियों की छुट्टियां ना मिल सकी। MBBS के तलबा को सिर्फ जुलाई में 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। गर्मी की शिद्दत के बावजूद मेडिकल कॉलेजेस के तलबा छुट्टियों से महरूम हैं। रवा साल 1 मार्च के बजाय अप्रैल में MBBS की क्लासेस शुरू हुई। तालीमी साल का आगाज़ ताख़ीर से होने पर तलबा को गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिल सकी। MBBS के तलबा को सिर्फ जुलाई में 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। MBBS के नए मॉड्यूल्स के बायस 2nd और 3rd ईयर के तलबा की छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा गर्मी की हालिया लहर से मुतासिर हो रहे हैं। हालिया गर्मी की शदीद लहर में मेडिकल के तलबा के लिए हॉस्टल्स में AC की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है, जिससे तलबा शदीद परेशानी से दो चार हैं। महकमा एक्साइज का 6 लाख शहरियों को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान की फहरिस्तें तैयार हो गई हैं। 54 अरब के टारगेट में 51 अरब से ज़ायद का हदफ हासिल कर लिया गया। जाली मशरूबात तैयार करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाइयाँ होगी और बजट में एक्साइज कवानीन में अहम तारामीम मुतारिफ करवा दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट पर लाने की तैयारियां। महकमा एक्साइज ने 6 लाख शहरियों को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा बना लिया। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। अगले माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान की तादाद 30 लाख तक कर दी जाएगी। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि रवा माली साल में 54 अरब के टारगेट में अब तक 51 अरब से ज्यादा का हदफ हासिल कर लिया है। प्रॉपर्टी टैक्स के 28 अरब 19 करोड़ के हदफ में 20 अरब हासिल किया गया है। रवा माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स को DC रेट पर मुंतकली के बाद 75% छूट की वजह से टैक्स वसूली में मुश्किलात रही। अगले माली साल में नए सिस्टम के तहत टारगेट का हसूल आसान हो जाएगा। रवा माह में हदफ हासिल करने में तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। अगले माली साल में एक्साइज मुतलका टैक्सीज में 65 अरब तक वसूल करने के अहल हो जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया को होश आ ही गया। कई हफ्तों बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन। गोश्त की सरकारी कीमत 475 रुपये किलो मुकर्रर हो गई। जिंदा ब्रायलर 328 रुपये किलो फरोख्त हुआ। और दूसरी जानिब इंतज़ामिया सब्जियों और फलों की सरकारी निकनामे पर अमल करवाने में नाकाम है। आलू सरकारी निक 60 और बाजार में 90 रुपये किलो में फरोख्त जारी, जबकि टमाटर 70, लहसुन 220 और प्याज 70 रुपये किलो तक पहुँच गया है। कई महीनों बाद ज़िला इंतज़ामिया ने ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन करना शुरू कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त की कीमत 475 रुपए किलो मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर 10 रुपए तक सस्ता हुआ और इसका फार्म रेट 300 रुपए किलो मुकर्रर हुआ। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 314 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर की कीमत 328 रुपए किलो रही और साफी गोश्त मनमाने दामों 600 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा। दूसरी जानिब इंतजामिया सब्जियों और फलों की सरकारी निकनामे पर अमल करवाने में नाकाम हो गई। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां और फल फरोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरियों की जेब पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। इंतजामिया ने आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए फी किलो मुकर्रर की है, लेकिन बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 40 की बजाय 70 रुपए किलो, लहसुन देसी 185 की बजाय 220 रुपए किलो, जबकि प्याज की 40 की बजाय 70 रुपए फी किलो वसूल किए जा रहे हैं। आम दोशहरी की सरकारी कीमत 250 फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। आलू बुखारी की सरकारी कीमत 280 फी किलो मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 350 रुपए किलो है। केला सरकारी कीमत 100 रुपए फी दर्जन की जगह 160 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमत 370 है, ताहम बाजार में 450 रुपए किलो वसूल किए जा रहे हैं। आड़ू 160 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों को दरपेश मसाइल का हवाल जानिए इस रिपोर्ट में। क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन डूंगी ग्राउंड से मुल्हका सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई। सड़क को पाइपलाइन के काम के लिए तोड़ा गया था। अरसा बीत जाने के बावजूद भी सड़क की मरम्मत यकीनी नहीं हो सकी। गर्दो गुबार से कारोबार मुतासर, जबकि अहले इलाका के लिए गुजरना भी मुहाल हो गया है। अहले इलाका का कहना है इंतजामिया अधूरा काम छोड़कर चली गई है। सड़क की मरम्मत को फिलफोर मुकम्मल किया जाए। बुखारी पार्क चदरा के रिहायशी ट्रांसफार्मर खराब होने पर सरापा एहतजाज रहे। अहले इलाका कहते हैं आए रोज ट्रांसफार्मर खराब होता है, जिसके बायस 2-2 रोज तक बिजली बंद रहती है। एक माह में 4 बार ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। अहले इलाका कहते हैं इंतजामिया को कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं करवाया जा रहा। हमारी अपील है कि ट्रांसफार्मर तब्दील करवाया जाए।
टीपा के आगाही बोर्ड सियासी तशहीर की नजर हो गए। फिरोजपुर रोड पर ईद मुबारक के फ्लेक्सीज और बैनर्स ताहाल अवेजा हैं। टीपा के आगाही बोर्ड्स छुप जाने से शहरी परेशान हो गए। दूसरे शहरों से आए लोग खास तौर पर मुतासिर हैं। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया है। शादमान में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट का जंगला और दरवाजा चोरी हो गया। शदीद गर्मी में इलाका मकीन खाली बोतलें वापस ले जाने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि साफ पानी भरने आए थे, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। गर्मी के मौसम में अतराफ के इलाकों से पानी लाना पड़ता है। और अब आपको बताएंगे वहादत रोड रजा ब्लॉक पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स कई माह से गैर फाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। अंधेरे की वजह से राहगीरों को मुश्किलात हैं। वारदातों में भी इजाफा हो गया है। तो वहादत रोड रजा ब्लॉक पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स कई माह से गैर फाल है। क्या वजूहात हैं, अभी तक फॉल क्यों नहीं की गई? रोमेल से जान लेंगे। रोमेल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल, वहादत रोड के रजा ब्लॉक स्टॉप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इंतजामी गफलत के बाइस से रजा ब्लॉक स्टॉप वहादत रोड के अतराफ जो रोड पर नस्बशुदा रोड लाइट्स हैं वो कई माह से फ़नी खराबी के बायस बंद पड़ी हैं और अंधेरे के बायस रात के औकात में वहादत रोड से गुजरना जो है वो राहगीरों का मुहाल हो चुका है। मोटरसाइकिल सवार हो, कार सवार, बस या रिक्शा सवार हो, दूर से आने वाली जो ट्रैफिक है उससे इस सड़क पर मौजूद जो रुकावटें हैं और जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं, जिससे आए रोज़ जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं। साथ ही साथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं और रात के वक्त अंधेरे में उन्हें जो सड़क पार करना पड़ती है। बच्चे जो हैं वो भी लोगों के हमराह होते हैं। बस स्टॉप है क्रीम ब्लॉक का, वहाँ से जो सवारियाँ उतरती हैं वो भी जो है वो सड़क पार करते हुए उनको भी मुश्किलात का सामना रहता है। क्रीम ब्लॉक का जो स्टॉप है वो भी अंधेरे में डूबा हुआ है और जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि मुतादिद बार ज़िला इंतज़ामिया से जो शिकायत हैं वो की हैं, कॉलें भी की गई हैं यहाँ के इलाका मकीनों की जानिब से, मगर जो इंतज़ामिया है वो हरकत में नहीं आ रही और शहरियों की शिकायत के बावजूद उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे। रजा ब्लॉक वहादत रोड के जो मकीन हैं उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और वहादत रोड पर नस्बशुदा जो रोड लाइट्स हैं उन्हें चालू करने के इक़दाम उठाए जाएँ और फौरी तौर पर इन रोड लाइट्स की जो फ़नी खराबी इन्हें दूर किया जाए और इन्हें रोशन करके लोगों को दरपेश जो मसाइल हैं उनका अजाला किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रोमेल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कावानीन और वन वे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पिको रोड, पिंडी स्टॉप, कश्मीर चौक, यूटर्न, मॉडल टाउन, लिंक रोड, अरफा करीम टावर, बैंक स्टॉप, फ्लाई ओवर समेत मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तफसीलात इस हवाले से जान लेंगे। हसनैन औलग से बताइएगा। बिल्कुल, शहर में जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो सरेआम जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अगर रुख किया जाए, जिसमें चुंगी अहमद सद्दू फ्लाई ओवर की बात की जाए या फिर जो बैंक स्टॉप का फ्लाई ओवर है उसकी बात की जाए, इसके अलावा यहाँ पर मौलाना शौकत अली रोड पर मुख्तलिफ जो यू टर्न्स बने हुए हैं वहाँ पर जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो सरेआम की जाती हैं। अकब के मनाजर हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अरफा क्रीम टावर की, तो वहाँ से भी जो मोटर बाइकर्स हैं वो कोट लखपत आने के लिए जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाइकर्स की जानिब से, गाड़ियों वालों की जानिब से, कारों की जानिब से जो खिलाफ वर्जियाँ वो की जाती हैं। अगर इक़दामात की बात की जाए तो इस वक्त जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो कहीं भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शाज़ और नाज़र नज़र आएंगे और अक्सर औकात वो मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। और खिलाफ वर्जी करने से ना सिर्फ जो ट्रैफिक का बहाव है वो मुतासिर होता है, सुस्त रवि का शिकार भी होती है और हादसात रूनुमा होने का जो खतरा है वो भी पैदा हो जाता है। इसके साथ साथ जो मोटर बाइकर्स हैं या फिर जो भी वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद हैं उनकी जो फिर सेफ्टी है वो भी उसके ऊपर कम्प्रोमाइज़ होता है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये ऐसे जो कारनामे हैं वो जारी हैं और खिलाफ वर्जियाँ वो की जा रही हैं। अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरियों का ये कहना है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए और उसके नतीजे में ही जो ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं उनके ऊपर जो काबू है वो पाया जा सकता है और जो ट्रैफिक कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़मा बुखारी ने कहा है कि अवाम को रिलीफ की खुशखबरियाँ मिल रही हैं। सियासी मुखालिफिन को मुस्लिम लीग नून की तरक्की हज़म नहीं हो रही। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी का यह कहना था कि पंजाब में ईद के दिनों सफाई सुथराई का मिसाली काम हुआ, ऐसा काम दीगर सूबों में नहीं हो सका।
DGPR में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और वजीर बल्दियात ज़ेशान रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। वजीर आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वफाकी बजट भी पेश किया गया है, जिसके अंदर जहां एक IMF के एक सख्त और मुश्किल शिकंजे के अंदर पाकिस्तान मौजूद है, उसके होते हुए भी जो एक सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका आप सब हम जिनको जो है वो पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला गया था, क्योंकि तनख्वाहदार तबका वो मासूम तबका होता है जिसकी तनख्वाह आने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, और यकीनन ये बहुत बड़ा बोझ था जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर था। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ेशान रफीक ने कहा कि ईद उल अज़हा के चारों दिन पंजाब में सफाई सुथराई पर मिसाली काम हुआ है। सिंध के अवाम पंजाब की कारकर्दगी देखकर मरियम नवाज को सिंध की वजीर आला देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। हर तहसील के अंदर कंट्रोल रूम कायम हुए थे, हर जिले के अंदर अलग कंट्रोल रूम कायम थे, और पंजाब के अंदर प्रोविंशियल सतह के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी हमारा कंट्रोल रूम कायम था और सेफ सिटी के अंदर भी हमारा कंट्रोल रूम कायम था। तो हर इन जगहों के ऊपर आप लाइव चीज़ें देख सकते थे कि कौन सी गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है, कितना वेस्ट जो है हमने उठाया है, और हमारे जो फाइनल जो डंपिंग साइट्स थी जहाँ पे हम डंप किया था। सूबाई वज़रा ने कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में जो मुफाद आमा के काम हुए वो 74 साल तारीख में किसी सूबे में नहीं हुए। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की साइट का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और IDIP की टीम ने ब्रीफिंग दी। सलमान रफ़ीक बोले आवाम के लिए बड़ा कैंसर हस्पताल बना रहे हैं। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की साइट का दौरा किया और मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक आवाम के लिए एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हस्पताल बना रहे हैं जो आलमी सतह की तिब्बी सहूलियात का हामिल होगा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल के पहले फेज़ को रवां साल में ही मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हुजाज कराम की वतन वापसी का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुजाज कराम का इस्तकबाल किया और हाजी को हार पहनाए और मुबारकबाद भी दी। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की लाहौर एयरपोर्ट आमद हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वतन वापस आने वाले हुजाज कराम को हार पहनाए और खुश आमदीद कहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हुजाज कराम को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि आप खुशकिस्मत हैं, आपको अल्लाह ताला ने अपने घर की ज़ियारत और मुक़द्दस सरज़मीन पर हाज़िरी की सादत अता फरमाई। हुजाज कराम मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और खुशहाली को तरक्की के लिए दुआ करें। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से दरोगा वाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द ने इंडस्ट्री क्लस्टर के मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत ने वफ़द को जायज़ मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। पैसिक हाउस डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से दरोगा वाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत चेयरमैन एसोसिएशन शुबान अख्तर ने की। वफ़द ने दरोगा वाला इंडस्ट्री क्लस्टर को इंडस्ट्रियल जोन का दर्जा देने का मुतालबा किया। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी कांग्रेस, डायरेक्टर पंजाब सरमाया बोर्ड और डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने मुतलका हुकाम को सनदी क्लस्टर का विजिट करके मसाइल का जायजा लेने की हिदायत जारी की है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा पंजाब हुकूमत इंडस्ट्रियल स्टेटस के हवाले से नई पॉलिसी ला रही है। पंजाब में जदीद इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 था 2030 पर ब्रीफिंग दी गई। ट्रांसपोर्ट हाउस में होने वाले इजलास में महकमे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मास ट्रांजिट के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। बिलाल अकबर खान ने अवामी मुफाद के लिए जारी मनसूबों पर काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 2030 ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर शिफ्ट होने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करें तो मुहर्रमुल हराम के इंतजाम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। आशूरा के जुलूस व मजालिस की तैयारियों के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने मुंतज़मीन को मुकम्मल इंतजामी सहूलियत देने की हिदायत जारी की है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर चौधरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुदस्सर नवाज और मुंतज़मीन ने भी इजलास में शिरकत की है। मुंतज़मीन ने मुकम्मल ताउन का अज़्म ज़ाहिर किया और डिप्टी कमिश्नर सैयद रज़ा के इक़दाम को सराहा है।
لاہور کی گلیوں میں چھپی تاریخ کی داستانوں میں ایک ایسی عمارت بھی ہے جو نو آبادیاتی دور میں سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز رہی۔ اسی جگہ پر علامہ اقبال، بھگت سنگھ، قائد اعظم اور دیگر قومی رہنماؤں نے آزادی کی تحریک کو جلا بخشی۔ یہ عمارت کہاں واقع ہے اور اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نہ وہ رونقیں نہ ہی وہ نعرے، بس خاموش دیواریں۔ یہ ہے لاہور کے ریٹیگن روڈ پر واقع بریڈ لا ہال، جسے 19ویں صدی کے آخر میں برطانوی رکن پارلیمنٹ چارلز بریڈ لا کے نام پر تعمیر کیا گیا۔ یہ جگہ آزادی کی تحریک کی گواہ اور سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھی، جو اب ویران پڑی ہے۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہاں خطاب کیا تھا۔ 1956 میں سیلاب کے بعد اسے نیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے حوالے کیا گیا۔ بعد میں یہ عمارت مختلف تعلیمی اداروں اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں بریڈ لا ہال عمارت تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ورلڈ سٹی کی جانب سے عمارت کی بحالی کا کام خوش آئند ہے۔ اس عمارت پہ ورلڈ سٹی نے کام کر دیا اور یہ تاریخی عمارت ہے اور اس پہ جو ہے نا بہت اچھی عمارت ہے اور اس پہ ورلڈ سٹی نے کام کر دیا۔ یہ تاریخ کا سنہری باب ہے یہ عمارت ہماری، اور اس پہ وال سٹی نے کام شروع کر دیا، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے اور ایسی عمارتوں پہ کام ہونا چاہیے۔ وال سٹی کو چاہیے کہ یہ کام کرنے چاہیے اس میں۔ ورلڈ سٹی کی جانب سے 2022 میں عمارت کی تعمیر و بحالی کا کام شروع کیا گیا تھا تاکہ یہ عمارت آنے والی نسلوں کے لیے ایک بار پھر شعور، علم اور بیداری کا مرکز بن سکے۔ بریڈ لا ہال ایک عمارت نہیں بلکہ ماضی کی کئی یادیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ برسوں سے کھنڈر بنتی عمارت کی بحالی کا کام ورلڈ سٹی کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کی تاریخی اہمیت سے روشناس ہو سکیں۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ قومی امن کمیٹی کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی مذہبی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ عید ملن کا اہتمام جامع مسجد کبریٰ سمن آباد میں کیا گیا۔ چیئرمین قومی امن کمیٹی سید پروفیسر محمود غزنوی نے میزبانی کی ہے۔ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مختوم، مولانا اصغر عارف چشتی، مفتی عاشق حسین، پاسٹر مجید ایبل شریک ہوئے۔ میاں امیر عباس، پاسٹر میسی رانا عبدالمنان، علامہ ارشد آبدی، جہانزیب خان نے شرکت کی۔ عشاء گل، عارف مسیح، کامنان پرویز چودھری، حافظ عطاء الرحمان، دیگر بین المذاہب قائدین اور کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ پروفیسر سید محمود غزنوی نے شرکاء کا استقبال کیا۔ اور صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے 100 سے زائد مسیحی خاندانوں میں ایسٹر گرانٹ کے چیک تقسیم کیے ہیں۔ اس موقع پر مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پی پی 155 اور این اے 120 میں ایسٹر گرانٹ تقسیم کرنے کی تقریب سجائی گئی۔ وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی، ممبر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میاں بابر شفقت بٹ کی شرکت، مسیحی برادری سے شہباز آتش و دیگر بھی تقریب کا حصہ بنے۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا 100 اقلیتی خاندانوں میں چیک تقسیم کرنے آئے ہیں۔ میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تاریخ ساز بجٹ اقلیتوں کو 250% بڑھا کر دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک تاریخ ساز بجٹ اقلیتوں کے لیے دیا گیا جو کہ 250% بڑھا کے دیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیف منسٹر پنجاب کا اپنی اقلیت کے ساتھ جو محبت، جو پیار، جو احترام کا رشتہ ہے اس کی عکاسی ہے۔ نعیم شہزاد بھٹی کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ اور ایاز صادق کی بہت اچھی کاوشیں ہیں، اقلیت کو اپنی خوشیاں منانے کا موقع ملے گا۔ 15,000 روپے فی کس دیے گئے ہیں۔ ایسٹر کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں مسیحی برادری کے لیے 15,000 روپے کے جو امدادی چیک ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق آج اقلیت برادری، مسیحی برادری ہے، ان کے حوالے سے جو ہمیشہ وہ اعلان کرتی ہیں امداد دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایم این اے ایاز صادق نے خصوصی فنڈز سے مسیحی برادری کو ایسٹر فنڈز دے کر اقلیتوں کے دل جیت لیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی قائد محترمہ مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اقلیتی برادری کو چیک دے کر ہماری بھی حوصلہ افزائی کی۔ ہم بھی ان کے ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا خوشی ہوئی ہے ایسٹر کی مناسبت سے 15,000 روپے فی کس ملے ہیں۔ کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔